Good morning, students. So, in the last class, we just revised chapter 1 integers, and today we will start the revision of chapter 2 fractions and decimals. So, first of all, I want to tell you what are fractions. So, fractions are written in the form of P upon Q. Yes, correct, Vansh. Fractions are written in the form of P upon Q. इस फॉर्म में लिखा हुआ जो भी नंबर होता है that is called fraction, where P and Q, the numbers written over the line and below the line are whole numbers. They must be whole numbers, not integers. लिखा है ना, not negative. मीन्स इंटीजर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, बट फ्रैक्शंस आर नेवर नेगेटिव. फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए इंटीजर्स नहीं होते हैं, ये होल नंबर्स होते हैं पी एंड क्यू. ओके, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू द नंबर रिटन बिलो द लाइन मस्ट नॉट बी जीरो. Yes, Karthik. Then P is the numerator and Q is the denominator. What are P and Q called here? P is called numerator and Q is called denominator. Okay. So that was all about fraction. Okay. Then types of fractions. Types क्या होते हैं fraction के? There are 8 types of fractions. First is proper fraction. In the proper fraction, the numerator is always less than the denominator. Means the number which is written above are always less than the number written below. ऊपर जो लिखे नंबर होते हैं नीचे के नंबर से छोटे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, yes Tarvi, 2 upon 3, 7 upon 9, 41 upon 50. Here you can see 2 is less than 3, 7 is less than 9 and 41 is less than 50. 2, 7 all are numerators. They are less than their respective denominators, hence they all are proper fractions. Now improper fractions are just opposite of proper fractions. Means the numerator must be greater than or equal to denominator. Here you can see it is written numerator must be equal to or greater than the denominator. या तो numerator denominator से bigger होगा या उसके equal होगा. Bigger होगा तो देखिए इस तरीके के fractions बनेंगे 3 upon 2, 9 upon 7, 50 upon 41. Means 3 is greater than 2. The numerator is greater than the denominator. Here again you can see 9 is greater than 7 and 50 is also greater than 41. Means all the numerator are greater than their respective denominators. But if numerators and denominators will be equal, then the value will be 1. Here you can see 4 upon 4 or 3 upon 3. I am taking an improper fraction 4 upon 3. Numerator 4 is greater than the denominator 3. Okay, 4 is greater than 3. If numerator and denominator both get equal, means 4 upon 4 or 3 upon 3. So their value will be 1. So in these are also improper fractions. Okay, so if the numerator is greater than or it is equals to the denominator, it is called the improper fraction. Fine. Then the third is mixed fraction. Mixture of whole number and proper fraction. Mixed fraction क्या होते हैं? Whole numbers और proper fractions के mixture होते हैं. Proper fractions means in which numerator is less than denominator. You can see the examples here. 2 3 upon 5, 1 11 upon 13. Here 2 is the whole number, 2 is the whole number and 3 upon 5 is the proper fraction. 1 is the whole number and 11 upon 13 is the proper fraction because numerator is less than the denominator. So mixed fraction में हमेशा whole number के साथ जो fraction होता है it is proper fraction. ये improper fraction नहीं होगा, ये हमेशा proper fraction होगा. Okay. So fourth part is like fractions in which the denominators are same. You know that in the example you can see 9 is the denominator in all the fractions. It is equal in all the fractions. So all the fractions are like fractions. Yes, good Mehak. 3 upon 9, 4 upon 9, 7 upon 9, 11 upon 9. All are like fractions because they are having same denominator. Then unlike fractions, different denominators. Obviously it is just opposite to like fractions. Hence their denominators will be different. Okay, you can see in these examples 15, 16, 8, 11. All the denominators are different. They are not equal to each other. एक दूसरे के equal नहीं है ना, सभी different है, तो they all are unlike fractions. In unlike fraction, just see the denominators to find whether the fraction is like or unlike. You have to just see the denominator, not the numerator. In both the fractions, you can see numerators are equal 21 and 21.
but you have to see their denominators, they must be different. 8 and 11, they are different, they are not equal to each other, hence they both are unlike fractions. Okay, then the next type of fractions is decimal fraction. In the decimal fraction, denominator must be of the type 10, 100, 1000, 10,000, etc. Okay, means it should be tens exponent. 9 upon 10, 3 upon 10, 41 upon 1000, 157 upon 10,000. You can see denominator में इसी type के number आ रहे हैं 10 के exponent. So all these are decimal fractions. Vulgar fractions which are not decimal fractions. Decimal and vulgar fractions are opposite of each other. If in decimal fractions in the denominator these type of numbers occur, then in the vulgar fractions they number will never be occurred. Okay, डेसिमल फ्रैक्शन में इस टाइप के नंबर आते हैं डिनोमिनेटर में, और क्योंकि वल्गर जो है वो डेसिमल का ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली वल्गर फ्रैक्शन में इस टाइप के नंबर नहीं आने चाहिए डिनोमिनेटर में. सो ऑब्वियसली वल्गर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच आर नॉट डेसिमल फ्रैक्शंस. Here in the examples you can see 7, 13 and 101. They are not the exponents of 10. 10 के exponent नहीं है ये इस टाइप के numbers नहीं है. So all these are vulgar fractions. Then equivalent fractions you can find by multiplying or dividing both numerator and denominator with the same number. मैंने 2 examples दिए यहाँ पर 4/5 and 16/40. In 4/5 I have multiplied both numerator and denominator with 2. Same number से multiply करना है. I will get 8/10. Again I am multiplying 4/5 with 3. Both numerator and denominator दोनों को ही multiply करना. ठीक है, so answer will be 12/15. So if I multiply the given fraction, yes, if in the given I multiply the given fraction with the same number, different numbers they can be. Different means अगर मैं फर्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देन मैं सेकंड टाइम 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इन नंबर्स की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, but number should be same, that will be get multiplied with numerator and denominator. Okay, so 4/5, 8/10, 12/15, all these three are equivalent fractions. Again you can see 16/40, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी नए फ्रैक्शन बना सकते हैं इक्विवेलेंट. 16/40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यू फ्रैक्शन बन जाएगा दोनों को. बट मैं आपको डिवीजन का भी एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पे. मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ दोनों को, 16 को और 40 को. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू बोथ ऑफ देम आई एम डिवाइडिंग बाय 2. So it will be 8/20. Again I am dividing them with 8. So it will be 2/5. Again if I divide both the numerator and denominator, yes, with 4, then I will get 4/10. So you can see कॉमन मार्क नंबर है 2, 8, 4, तीनों सेम नंबर से डिवाइड किया है ना मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. यहाँ 2, 2, इधर 8, 8 एंड देन 4 and 4. ठीक है, डिफरेंट नंबर से नहीं करना है, एक बार में इन वन टाइम यू हैव टू डिवाइड विद द सेम नंबर. वन टाइम में सेम नंबर से ही करना है. So 16/40, 8/20, 2/5 and 4/10, they all are equivalent fractions. Fine. Next is comparison of fraction. How to compare fractions, how to find which fraction is bigger or which is smaller. Okay, so 3 conditions you can find in the question. First condition is denominators can be same. If denominators are same in the given fractions, then the fraction with smallest numerator will be smaller. Okay, डिनोमिनेटर ये अभी हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो डिनोमिनेटर्स आर सेम इफ दे आर लाइक फ्रैक्शंस. डिनोमिनेटर्स कौन से फ्रैक्शन में सेम होते हैं? लाइक फ्रैक्शन में. तो अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे, फ्रैक्शंस लाइक हैं, तो उन्हें कैसे कंपेयर करेंगे? यू हैव जस्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर. जो न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर विल बी द बिगेस्ट, दैट फ्रैक्शन विल आल्सो बी बिगेस्ट. ठीक है, न्यूमरेटर्स आर सेम. सेकंड कंडीशन है अगर न्यूमरेटर सेम होंगे तो इसमें जस्ट ऑपोजिट कंडीशन आ जाती है. यहाँ पे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होता है, यहाँ स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन बिगेस्ट होता है. ओके, जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना ही बड़ा फ्रैक्शन होगा. फाइन. Sometimes you have to learn them not to get confused. Okay,
जब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, थर्ड कंडीशन, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, कोई भी सेम नहीं हो तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, तो आई हैव टू टेक द एलसीएम एंड मेक डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम बनाने उस कंडीशन में आपको बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कंडीशन, फिर हम उनके न्यूमरेटर्स को देख करके उनको कंपेयर करेंगे। ओके, यस अंश। देन of operation, of means simple multiplication, whenever of operations occur in any question you have to put multiplication over there at the place of ठीक है, ऑफ की जगह आपको क्या रखना है, मल्टीप्लीकेशन, एंड देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लीकेशन में कैसे करना है बेटा, a अपॉन b एंड c अपॉन d if two fractions are given to you, then in the resultant fraction numerator part will be multiplication of numerators and denominator part will be multiplication of denominators, means जो गिवन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ओके, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एंड रिजल्टेंट फ्रैक्शन यू विल गेट। देन फॉर द डिवीजन, if you will divide a upon b divided by c upon d, if you will divide a fraction with the other fraction, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कर रहे हैं तो डिविडेंड भी फ्रैक्शन होगा, डिवाइजर भी फ्रैक्शन होगा। उस कंडीशन में राइट द डिविडेंड एज इट इज a upon b, convert the division sign into multiplication and then write the reciprocal of divisor। क्या करना है, सिर्फ दो चीजों में चेंज करना है, डिविडेंड एज इट इज लिखना है, ये जो डिवीजन साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, एंड देन जो डिवाइजर आपको गिवन होगा उसका रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल यू नो इन द इंटीजर्स चैप्टर you have also studied, just replace the places of numerator and denominator with each other। डिनोमिनेटर नीचे होता है तो वो ऊपर आ जाएगा, when we write its reciprocal, न्यूमरेटर ऊपर होता है तो वो नीचे चला जाएगा। okay, so it will be a upon b into d upon c, fine। then decimal numbers, come to the topic decimal। decimal number are these type of numbers in which decimal come, decimal आता है जिसमें you can see some numbers are written on the left side and right side of this decimal। the numbers which are written on the left side of the decimal, then the numbers which are written on the left side of the decimal they are called whole part, and the number which are written on the right side it is called decimal part। ओके, जो बाद में लिखा है राइट साइड में लिखा है 2, 1 एंड 8 इट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट, और जो स्टार्टिंग में लिखा है मींस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल 406 इट इज कॉल्ड होल पार्ट, and in between you can see this decimal occurs। okay, we show the decimal with the point, fine। then conversion of units, how to convert units, units means units of capacity, units of weight, units of money or units of length। okay, so if we convert the smaller unit into bigger unit, smaller to bigger means centimeter to meter, milliliter to liter, paise to rupees and gram to kilogram, these all are smaller and I am converting them into bigger units। तो smaller से bigger में जब आप convert करते हैं तो divide करना होता है। yes, very good अंश। and इसके just opposite, if we convert the bigger unit to smaller unit, kilogram to gram, rupees to paise, liter to milliliter and meter to centimeter, if you convert like this, you can see all these are bigger units, they will be converted into smaller units। yeah, very good Mehak। then you have to multiply। okay, so don't get confused between them, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है डिवाइड करेंगे, बिगर से स्मॉलर में करना है मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, मेन थ्योरी आई हैव टोल्ड यू टू इन टुडेज रिवीजन of chapter 2। now we will do some practice questions। first question is write in ascending order, with the comparison of fractions you can write them in ascending and descending order also। a part is 4 fractions are given to you, 11 upon 8, 3 upon 8, 5 upon 8 and 16 upon 8। now you have to compare them and you have to write them in ascending order, ascending means smallest to biggest,
Yes, very good students, very good. So you can see all the denominators are same. और फर्स्ट कंडीशन में हमने पढ़ा था कंपैरिजन में, जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, विच वन इज द स्मॉलर इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलेस्ट, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। कब? जबकि द डिनोमिनेटर्स आर सेम। सो सबसे व्हाट विच वन विल बी द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर? 3, 11, 3, 5 एंड 16। इन सभी में देखिए 3 सबसे छोटा है, तो 3/8 सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। उसके बाद 5, it will be 5/8, yes, very good. Then 11, 11/8, and then 16 is 16/8. So this will be the ascending order of fractions. अगर आपसे इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि which one is the smallest, then you will write 3/8. As you can see, numerator is the smallest. And which one is the greatest? Then it will be 16/8. ठीक है, तो कंपैरिजन के थ्रू आप सबसे छोटा, सबसे बड़ा और उसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सभी बता सकते हैं। अगर हमें इफ वी हैव टू राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर हेयर, देन विच वन विल कम एट फर्स्ट? सबसे बड़ा 16/8, देन 11/8, देन 5/8, एट द लास्ट सबसे छोटा 3/8, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखते हैं। ठीक है, दिस इज द ए पार्ट। नाउ द बी पार्ट इज 2/9, 2/11, 2/7 and 2/5. Tell me the ascending order. Which one is the what will be the ascending order for that? No. जब भी न्यूमरेटर, नहीं बेटा, इसमें डिनोमिनेटर सेम दिए हुए हैं ना, तो नो नीड टू कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस। आप कह रहे हैं एलसीएम लेके कन्वर्ट कर ले, आप कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो किस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि इनका एलसीएम आप सेम बनाए। आपको क्या करना है, जस्ट सी द बिगेस्ट डिनोमिनेटर। 11 इज द बिगेस्ट डिनोमिनेटर। क्या क्या डिनोमिनेटर गिवन है? 9, 11, 7 एंड 5, 4 डिनोमिनेटर्स गिवन है ना। तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। यस, बिगेस्ट डिनोमिनेटर वाला स्मॉलेस्ट होगा। तो बिगेस्ट वाला क्या है? 2/11, तो ये सबसे छोटा है। मैंने आपको भी बताया था जब मैंने कंपैरिजन करवाया था, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर वाला बिगेस्ट फ्रैक्शन होता है। तो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर क्या है? 5, तो वो सबसे बड़ा होगा, वो सबसे एंड में आएगा, क्योंकि हमें बिगेस्ट स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखना है। 11 के बाद छोटा क्या है? 9, तो ये उससे बड़ा होगा। 9 से छोटा है 7, तो 2/7 बड़ा होगा। देन सबसे छोटा है 5, सो 2/5 विल बी द बिगेस्ट। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट लेकिन अगर आपको न्यूमरेटर सेम गिवन है तो सबसे बड़े डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। मैंने इसीलिए बोल रही थी आपको कि ये थोड़ा सा आप लर्न कर लीजिएगा इन रूल्स को। ओके, नाउ द सी पार्ट इज 3/5, 1/4, 7/10 एंड 6/20। अब यहाँ देखिए, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बोथ आर गिवन। कैसे दिए हुए हैं दोनों? डिफरेंट। नाउ यू हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए पहले तो आप एलसीएम लेंगे। LCM of 5, 4, 10 and 20. So it will be what? 20. Yes, LCM will be 20. You know very well how to take the LCM. देखिए किस तरीके से लेंगे LCM? 5, 4, 10 and 20. 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 4 will come as it is, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, then 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, wait,
After 5, divide by 2. 1 will be as it is. 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. स्मॉलेस्ट फैक्टर से करते हैं डिवाइड, ठीक है. देन अगेन डिवाइड बाय 2, 1 1 1 एंड 1. नाउ मल्टीप्लाई देम. 5 into 2 into 2, it will be 20. So the LCM for these four numbers will be 20. Now you have to convert all these denominators in 20. किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके. 3/5 को अगर मुझे 5 को 20 में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 4. यस, 3 4s are 12, 5 4s are 20. देन 1/4. 1/4 को अगर मुझे 4 को 20 में कन्वर्ट करना है, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. वेरी गुड. सो इट विल बी 5/20. देन 7/10. 10 को मुझे 20 में कन्वर्ट करना है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. इट विल बी 14/20. देन 6/20 विल कम एज इट इज. यहाँ पे ऑलरेडी 20 गिवन है आपको, तो 4 फ्रैक्शंस हो गए देख हमारे पास. अब नाउ दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शंस. 12/20, 5/20, 14/20 and 6/20. Now we can easily write their ascending orders. द स्मॉलेस्ट विल बी, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर देखना है. स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज 5. सो 5/20 विल बी स्मॉलेस्ट. देन 6/20, 6 से बड़ा होगा 12/20 एंड देन 14/20 इज द बिगेस्ट. नाउ राइट देयर ओरिजिनल फ्रैक्शंस. यही नहीं छोड़ना है आपको आंसर में, इनके ओरिजिनल, यस, उनके ओरिजिनल फ्रैक्शंस भी लिखने हैं. 5/20 का है 1/4. 6/20 एज इट इज, ये ओरिजिनल गिवन है. 12/20 का 3/5 एंड 14/20 का होगा 7/10. सो इन सभी जो 4 फ्रैक्शंस आपको गिवन है उनका असेंडिंग ऑर्डर होगा ये. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. यू हैव टू डू योरसेल्फ. दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. असेंडिंग मैंने आपको करवा दिया है. डिसेंडिंग में प्रोसेस सेम होगा, जस्ट आपको बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है. सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में देखिए व्हाट यू हैव टू डू. एडिशन. ये क्वेश्चंस गिवन है, आपको सॉल्व करना है. तो एडिशन के लिए you know again we have to take LCM of 20 and 35. yes, क्या होगा 20 और 35 का LCM? अगेन टेक इट. इनका स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर है 5, सो डिवाइड देम 5. 5 4s are 20, 5 7s are 35. ओके. सो नाउ अब देख सकते हैं 4 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. 4 से डिवाइड करेंगे, 7 will come as it is. then 7 से डिवाइड करेंगे, तो LCM होगा 5 into 4 into 7. 5 4s are 20 and 27s are 140. yes, 140 will be the LCM. okay, then solve them. I have written LCM here 140. now if you divide 140 by 20, किस तरीके से करते हैं सॉल्व? जो भी फ्रैक्शन के लिए आपको यहाँ आंसर लिखना है, उसके डिनोमिनेटर से फर्स्ट तो आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे. एलसीएम है 140. 140 को 20 डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. कितना आएगा बेटा? 7. उस 7 को आपको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. सो 7 9s are 63. ओके. प्लस अगेन अब मुझे सेकेंड फ्रैक्शन के लिए लिखना है. एलसीएम है 140, उसको मुझे 35 से डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से. किस तरीके से करेंगे? 7 से कीजिए पहले. 7 2s are 40, 7 5s are 35 and 5 4s are 40. ओके. इट विल बी 4. अब इस 4 को आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है. 16 4s are 64. नाउ एड दी both the numbers, so it will be 127 and 140 is the denominator. So 127/140 will be the answer for that.
यहाँ आपको आंसर में ये देखना है, इफ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म देन कन्वर्ट इट। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपको करना है कन्वर्ट, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। और कन्वर्ट नहीं भी करते हैं, अगर आपको टाइम नहीं है या समझ में नहीं आता है कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप वहीं भी छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन आई हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 6 and 8, व्हाट विल इट बी? इट विल बी 24। आप फाइंड करके देखना 24 आएगा, इसका एलसीएम मैं फाइंड नहीं कर रही हूँ, ईजी है ये 24। नाउ अगेन व्हाट यू हैव टू डू, डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड कीजिए। 24/6 विल बी 4, 6 4 is 24 and 13 into 4 will be 52। माइनस अगेन इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कीजिए 3 and 3 3 is 9, 8 3 is 24, 3 3 is 9। ओके, 52 minus 9 आप करेंगे, इट विल बी 43/24। ओके फाइन, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ आपको। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो बाय डिवाइडिंग यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन ऑल्सो। 24 से 43 को डिवाइड कीजिए, 24 2 48 ज़्यादा हो जाएगा, 24 1 24, 13 में से 4 माइनस करेंगे इट विल बी 9, 3 बचा यहाँ, 3 - 2 विल बी 1। सो क्या होगा, होल पार्ट क्या होगा, क्वोशिएंट 1, न्यूमरेटर में आएगा रिमाइंडर 19, और जो जिससे डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर में ही आएगा। सो इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा 119/24। ओके देन C part, here you can see mixed fraction is given in the question. So first of all you have to convert them into improper fraction. Okay, convert कीजिए, 8 into 9 72 and 72 plus 2 is 74/9। Yes, very good Drishti। Then 5 3s are 15, 15 plus 1 16, it will be 16/5, plus 2/3 will come as it is। Now you have to take LCM of 3 5 and 9। LCM will be 45। फाइंड करके देखें एक बार, 3 5 and 9, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 5 will come as it is, 3 3 जा 9, 5 3 कॉमन फैक्टर्स नहीं है, डिवाइड नहीं होंगे, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, so 45 will be the LCM। okay, then write 45। 9 45/9 will be 5, 5 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 4 are 20, 2 will be carried over here, 5 7 are 35 and 35 plus 2 will be 37। okay, minus 5 9 are 45, 9 से 16 को मल्टीप्लाई कीजिए इट विल बी 144, प्लस 3 से आप 45 को डिवाइड करेंगे इट विल बी 15, 15 2 are 30। फाइन, नाउ 370 and 30 आप देख सकते हैं बोथ आर पॉजिटिव, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 370 and 30 will be 400 minus 144 will as it is। बेटा 544 नहीं आएगा इसका आंसर, अपॉन 45 आपको माइनस करना है ना कि प्लस। आई थिंक 344 भी नहीं आना चाहिए भाई। 400 में से 144 माइनस करोगे ना आप, 10 में से 4 माइनस किया 6, 9 में से 4 माइनस किया 5, 3 में से 1 माइनस किया 2, इट विल बी 256/45। Now 256/45 is the answer। if you want to convert it into simplest form, और simplest form में convert नहीं होगा ये, अगर आप इसे mixed fraction में convert करना चाहते हैं then do it yourself at home। D part you have to do yourself, D part आपको खुद करना है। सो बेटा योरसेल्फ में मतलब जो आपको खुद को करना है, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सेकंड क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 3 का ये डी पार्ट आपको खुद करना है। दिस इज नॉट होमवर्क, क्लास वर्क में ही करना है कंटिन्यूटी में, बस ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, थैंक यू।